आवाज कम कर। नो आई एम लाइव। ओके, तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे शिवांश। हम्म। बुक ओपन करते हैं। क्लास 10th इंग्लिश, नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिक्स। चैप्टर 9। यस, इसमें कितना क्वेश्चन हमने किया था? आई थिंक क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था ना, या 7 तक हुआ है? चेक करके बताओ लास्ट क्लास में। इससे मुझे लग रहा है 7 तक हुआ है। 8 से कराना पड़ेगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर स्टडी। 7 तक हुआ था। ओके फाइन, थैंक यू। Hello student, welcome to your study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic where I am going to solve the remaining problems of NCERT exercise 9.1, and in the previous class I have solved up to the question number 7. So after 7 means from serial number 8 onwards, in this class I am going to solve in detail. So let us start. So here we will see the question number 8. First read the question. What is that? A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. So what exactly we see it here? A statue, एक स्टैचू है, मूर्ति है, जिसकी जो लंबाई है that is 1.6 मीटर टॉल एंड स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, मतलब एक चबूतरे के ऊपर, मतलब समझ लो एक हाइट के ऊपर वो मूर्ति रखी हुई है. So from a point on the ground, the angle of elevation on the top of the statue is 60 degree. So at a certain distance from the base we have to make it, and the angle is 60 degree. And from the same point the angle of elevation on the top of the pedestal is 40 degree. Find the height of the pedestal. So very easy question, interesting, and you might have already solved it. So in day-to-day life also, when you go to the market, you see that lots of statue on the चौराहा. अरे दिखते कि नहीं, महात्मा जी का मूर्ति, कभी शास्त्री जी का, कभी किसी चीज का मूर्ति आपको दिखाई देता है, वो पत्थरों के ऊपर रखा रहता है. तो वो यही क्वेश्चन है यहाँ पर. NCERT exercise 9.1 and the question number 8. What exactly the question है? कह रहे कि पेडेस्टल के ऊपर, तो पेडेस्टल का कुछ हाइट होगा, यानी ये पत्थर की होती है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर कोई मूर्ति रखी है. वो मूर्ति छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ए और बी कह के और इसको मैं मूर्ति बोल रहा हूं. What exactly we see here? When I say that the A to B is the pedestal,
The spelling of the pedestal is Pedestal, and this B to C is a statue. अब भैया खेलने मत लग जाना। एक जमाने में मुझे लोगों ने, मुझे पता नहीं था, ऐसे स्टैच्यू के बहुत देर तक खड़ा करवाया था। वेरी बैड थिंग स्टैच्यू। मैं नहीं खड़ा होता, मैं खेलता ही नहीं तेरे साथ। लेकिन छोटे बच्चों को बड़ा होता है, किसी मोमेंट पे कैसे भी स्टैच्यू कहने रहे हैं। ओके, STATUE स्टैच्यू। So what is that? BC is the statue. Statue मत खेलना, नहीं तो कुछ लोग जानबूझ के परेशान करने के लिए आपको उसी मोड में छोड़ देंगे। मैं खेलता ही नहीं किसी के साथ। बट स्टैच्यू बोला ना, ये ले, मैं नहीं बात घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ। Because sometimes they harass you. So बड़े statue. Okay, so this is not the statue for that. This is the statue here of any kind. And according to question, there is certain distance on the height. So here, suppose this is D, और जमीन पे कोई ये पॉइंट D है, and according to question we see the angle of elevation of the bottom and the top of the sorry from a point on the ground, that is D, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. What is the top of the statue? That is point C. And if you talk about the angle of elevation here, this is the top of the statue, and if I want to make this from this top of the statue to the point on the ground, that is D, the angle is 60 degree. What I call it is the 60 degree. Now another point is given also in this problem. If you have read it definitely. So we see it here in the question number 8. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. So here we see this is the pedestal and the top is the B. So top of the pedestal is B. What exactly here? The top of the statue is C, the point C, and the top of the pedestal is B. So for the top of the pedestal, the angle is given the 30 degree. The top of the pedestal, the angle of elevation is 45 degree. Understood? Now if you want to know that, what is the pedestal A to B? Suppose the height is A, some X, and this height, the statue is not given, say some is Y. Nothing is mentioned in this problem. Nothing is mentioned about the height of the pedestal or the height of the statue. No, you see that a statue 1.6 meter tall. So height of the statue is given, which is 1.6 meter. This is 1.6 meter tall. Means Y is given here. The Y is 1.6 meter. Just a second, I will send the link. English. Wow, great. You have entered the meeting room. So here what exactly we are going to do is the Y is 1.6 meter and it's given. Now if you say it, so we have two right triangles. So in triangle, now you are going to solve it, the solution. In triangle ABD, what is that? So if you write in triangle ABD is
tan 45 degree, or you can use, because I don't have this height, I can say that this base is AD. So I'll say that tan 45 degree is equal to some x by AD. So we don't have such length. AD also known. But what I will say that tan 45 is 1 is equal to x upon AD. You can say some z also here, but I say that it is AD. So x is equal to some AD. Understood? Now, if you apply the same concept in another triangle, in the next page, in triangle ACB. So in triangle ACB, what is the perpendicular? X plus y, and the angle is 60 degree. So the next, in triangle ABC, see it here, sorry, ACD. In triangle ACD, what is that? This tan 60 degree is equal to, you see, the angle of elevation at the top of the statue is 60 degree. So tan 60 is x plus y divided by some AD, perpendicular upon base. So tan 60 degree is root 3. The x is again AD. In the previously we have height here. In the previous question we see that the x is AD. What is y? This is 1.6 meter. And what is AD? This is AD. And the same way we can find this root 3 is equal to AD by AD is 1 plus 1.6 by AD. Understood? So if you subtract root 3 minus 1 is equal to 1.6 by AD, we can find the AD is basically the 1.6 by root 3 minus 1. So this is the AD. Now what exactly we have to find here in this case? What is the height of the pedestal? Means we have to find x. So if I know the AD, now I am able to find the x. X is AD. What is the height of the pedestal? Height of the pedestal is x, which is AD. And AD is 1.6 by root 3 minus 1. So here I will say either you can write it like that or you can convert it into the decimal. So I will write 1.6 by root 3 minus 1. So there is one way. On the next page, either you convert it into the decimal or root 3 minus 1, and I will multiply with the root 3 plus 1. Root 3, I will rationalize it because it's a rational term. So here I will write 1.6 into root 3 plus 1 divided by, this is root 3 square, which is 3, and the 1 is square, which is 1. So here I will write this is 1.6 and root 3 plus 1 or 1 plus root 3 you can write, this is 2, and 0.8 into 1 plus root 3, or you can write some 0.8 into 1 plus root 3 is 1.732, and what exactly you see that root 0.8 2.732. Now if you multiply this, definitely you are going to get the exact answer. There's multiple equations, you can do it and you can get the answer. I will not do that for you because you can do it. Next, so very simply you can solve it. The next question, what is that? So question number 8 we have solved. Now question number 9, I will share it with you and then I'll solve. Understood? So the next question, समझ आ रहा है सबको भैया? मैं इंग्लिश मैन बन गया तो लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, हवा में चल रहा है भाई। मैं दोनों तरह से बोलता हूँ, इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश मैन हूँ और हिंदी वालों के लिए हिंदी मैन हूँ। तो तुम्हें कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो पूरा इंग्लिश चलेगा, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चाहिए तो वो भी चलेगा, और अगर सिर्फ हिंदी चाहिए ना, वो भी मेरा लेक्चर अवेलेबल है। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत सारे हिंदी मीडियम की लेक्चर अवेलेबल है। तो ऐसा अनोखा तूफान लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए जो मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं और देखेंगे आने वाले टाइम में। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या बताऊँ आपको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना
और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो ये एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति में लाऊंगा एजुकेशन में, जो 2022 के बाद आने वाला समय होगा, जिसमें ऑनलाइन स्टडी को हम लेके आगे बढ़ेंगे और आप सबको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। खास करके किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, इन्वेस्टमेंट का भी सॉल्यूशन है, आइए जुड़िए और पढ़ाई को आसान कीजिए, लोगों की ज़िंदगी को आसान कीजिए, पढ़ाई को आसान कीजिए। क्योंकि अभी तक जो चलता आया है वो मुश्किल, लोगों ने अपने ज़मीन घर बार बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया है। अब उन चीज़ों का समय जाने का समय आ गया है। अच्छा एजुकेशन गांव में घर घर तक पहुंचे, हम तो लेके आएंगे। अब जुड़ना और तय करना आपका काम है। तो चलिए इस मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस क्रांति को, हम इस मशाल को जारी रखेंगे। लेकिन आप सबका सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ और तब तक करता रहूँगा जब तक आप लोग पसंद करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे नहीं भाई हमें वही चीज़ें सही है जो पहले चल रही थी, तो भैया वो चीज़ भी चलती रहेंगी, तो फिर हम बदलाव करेंगे। लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि जो समय के साथ परिवर्तन होता है, इवोल्यूशन होता है, हर हाथ में मोबाइल है आज के डेट में, तो उसको हम यूज करें, मिसयूज ना करें। तो उसको यूज करके हम पढ़ाई को आसान कर सकते हैं। और अगर, इसलिए मैंने नाम भी रखा है आज इजियर स्टडी, अपने पढ़ाई को आसान कीजिए और जुड़िए इनसे। जितना लोग जुड़ेंगे, हमें कोई इसमें ये नहीं है, लोगों को जुड़िए, अपने लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। जिनको अच्छा लगेगा वो हमेशा वेलकम है, जिनको अच्छा नहीं लगेगा उनके लिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा लगेगा ना, बढ़ेंगे आगे। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाता हूँ, क्योंकि ये लाइव क्लासेज भी है और पैरेलली साइमल्टेनियसली ये लाइव स्ट्रीम भी है यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ मैसेज अपने यूट्यूब दर्शकों के लिए भी देना पड़ता है। जो लोग देख रहे हैं, एक देखेंगे, अभी नहीं देख रहे, बाद में देखेंगे और फिर हमें उम्मीद है कि उनको अच्छा लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9 है। The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Would you be able to solve it or not? Please tell me. So the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower is 30 degree. So angle of elevation है, top of a building है, from the foot of the tower. तो ये बड़ा अजीब सा लगेगा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, इसमें देखोगे आप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओ माय गॉड, मतलब एक बिल्डिंग बनाओ, एक टावर बनाओ और उस टावर के फुट से है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मजेदार है यार। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग। वाह, इंटरेस्टिंग। मतलब एक बिल्डिंग भी है और एक टावर भी है। तो ऐसा थोड़ी हुआ कि बिल्डिंग के ऊपर में टावर है टावर अलग है, बिल्डिंग अलग है। बच्चा पूछता है टावर के ऊपर में मोबाइल टावर तो नहीं है बिल्डिंग के ऊपर में? अरे भाई नहीं, ये तो क्लियर नहीं किया है मोबाइल टावर है कि क्या है। लेकिन इतना मान सकते हैं, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तो क्लियर होगा। अगर हमने मान लीजिए कि मेरा बिल्डिंग है और टावर कहीं साइड में है, कोने में पड़ा, बोला नहीं है लेकिन मानते हैं कि सीट है, ये बिल्डिंग है और वो टावर है। ठीक है, नो हिट, आई विल सी इट हियर। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम इन सब को यहां पर देखें तो इसमें किसको बिल्डिंग बोलेंगे, किसको टावर बोलेंगे, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया कि ये मेरा बिल्डिंग है
ये बिल्डिंग है और ये टावर। बच्चे का सवाल, सर आपको कैसे पता कि बिल्डिंग सबसे बड़ा होता है और टावर छोटा होता है? लेकिन टावर बड़ा तो नहीं है यार। बच्चा तो क्वेश्चन जेन्युइन पूछ रहा है, प्रॉब्लम पढ़ ले, खुद ही पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम पढ़ता है और बोलता है कि सर पहले लाइन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो भैया टावर किधर है? ये रहा। और इसका फुट ऑफ द टावर कहाँ है? इसके पैर इधर है, ये इधर पड़ा हुआ है। समझे इस बात को? देखिए यहाँ पर ये है फुट ऑफ द टावर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां से लेके और फिर यहां तक ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग का टॉप और फुट ऑफ द टावर के बीच में मुझे जो पता है मैंने उतना तो लिख लो भाई, देखेंगे जो भी होगा वो देख लेंगे। यानी ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो, अब वो बोला कि टावर के टॉप का फुट ऑफ द बिल्डिंग से 60 डिग्री है। यानी ये टावर का टॉप है और ये बिल्डिंग का पैर है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर बोला उसने। समझिए इस बात को, ये मिला हुआ भाई, ये मत कह रहा कि सर इधर नहीं मिला, मिला है। समझ गया? ये 60 डिग्री है। नाउ यू सी दैट द टावर हाइट इज से सम x and this is some y. And what is it here? I'll say that this base distance is somehow the, कुछ भी मान लो यार, मान लो ना, z मान लो, z मीटर, कुछ भी मान, मीटर मान, हमें पता नहीं यूनिट क्या है, बट एनीहाउ से x मीटर। कुछ यूनिट के बारे में चर्चा किया केस ने। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है, कई बार पूछता है कि सर यूनिट कौन सा ले। हाँ, यूनिट का पता तब चलता है आगे कुछ और भी दिया होता है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये मीटर में ही है। टावर का यूनिट अगर मीटर में है तो बाकी सब भी हम मीटर में ही मानेंगे, z मीटर और y मीटर। सो वी हैव द बिल्डिंग, I can say that this is my A to B, then I can give the nomenclature to C and D. That is fine, it is sufficient enough to do this problem. So here in this problem, AB is building and the CD is tower. Okay, and then what is BT? And the BT is somehow some Z meter. So now we have AB, we have CD, we have BD, which is Z meter. We have already known. And what is the X, that is height of the tower, which is 50 meter. So here in triangle, we are going to solve this question. Similar information is given, and what we have to find the height of the building. What exactly? Sometimes सब कुछ लिखने के बाद सर निकालना क्या था? चुपके से कान में, find the height of the building भाई, find the height of the building. Height of the building. अरे कुछ समझ आ रहा है सबको कि नहीं? देखिए, height of the building, that I will say it is, निकालना है y में, मतलब y की वैल्यू निकाल के बताओ। So here in triangle, I will consider triangle first BCD, ओके, क्योंकि इसमें हाइट दिया हुआ है। तो क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमें माना है, तो इस केस में हमें 1060 लगाना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर इसका 50 मीटर है और इसका बेस z है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1063 की वैल्यू √3 होता है और ये 50/z होता है। अब हम लिखेंगे z is equal to 50/√3, and here I will write the 50√3 by some 3. So here we see that what is z. Now the question is that in another triangle I will take it ABD. In triangle ABD, okay, so here we see that some perpendicular y upon z is 1030 degree. This y upon z is 1030 degree. What is y? We don't know. Have you calculated z? Yes, definitely. In the previous case, we have calculated z, which is 50√3/3. So I like the 50√3/3. Now what is the 10 degree, which is 1/√3? So we simplify it, which is 3y upon 50√3 is equal to 1/√3.
Understood? Now 3y is equal to, we'll write that 50 root 3, if you multiply it, 50 root 3 by a root 3. So we calculate the root 3 get cancelled, and I'll write y is equal to 50 by 3. तो भाई और बहनों, आप सबको समझ में आ गया, 50/3 16.2/3 मीटर जी, समझा क्या? तो अगर ये समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? पूरा कैलकुलेशन करके दिया, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। समझ आया क्या? बोलो यस, यस सर, बोलिए। सब लग रहा है सो रहे हैं, रात के 9 बजने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है ना? भूख भूख तो लग गई सबको, तो खाते रहो ना ऑनलाइन मोड में, क्या दिक्कत है भाई? भूख लगी तो कुछ कुछ देते रहा करो एक आधी, और पढ़ते रहा करो। हेलो, ऑनलाइन मोड का कुछ फायदा भी है, खाने पीने का भी चल सकता है पैरेलली। ओके, दैट्स स्टडी मस्ट बी एंजॉयबल, बर्डन नहीं होना चाहिए यार, बर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 10, two people of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation on the top of the poles are 60 and 30 degrees respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो आई थिंक दिस क्वेश्चन यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो, और शायद मैंने अभी जो सॉल्व किया था वो बोर्ड पे दिखा नहीं क्या? कोई दिखना चाहिए यार, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। जिनको नहीं दिखा उनको लिए मैं अभी दिखा रहा हूँ भैया, ये मत कहना कि नहीं दिखा। देखो भाई, ये सॉल्व किया हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, ये बिल्डिंग लिया था ए और बी, और इधर सी डी लिया, अपोजिट माना। बिल्डिंग की हाइट वाई मीटर माना, ये जेड मीटर माना। बिल्डिंग के टॉप से टावर के पैर का जो बन रहा है 30 डिग्री है, और टावर के टॉप से बिल्डिंग के पैर का फुट का 60 डिग्री है। हमने इसको y माना, इस ये x 50 मीटर दिया है और ये z है। पहले मैंने BCD लिया, जिसमें मैंने बोला कि 50/z होगा, इससे हमें 1060 से z की वैल्यू आई 50√3/3 आया। फिर उसके बाद हमने दूसरा ट्राइंगल कंसीडर किया ABD वाला, जिसमें हमने 1030 का फॉर्मूला लगाया, y/z किया, y/z किया, z अपने को मालूम, तो 3/50√3 हुआ। इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई किया जी, 50√3 उधर गया तो मैंने सिर्फ इसको उधर भेजा और 3y को इधर ही लिखा, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, फिर 3 इसके नीचे आ टपका, और ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 10 अभी शेयर करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से देखिए। So question number 10 is it here. Two poles of equal heights are standing opposite each other. देखो क्लियरली मेंशन किया है कि दो पोल है और एक दूसरे के अपोजिट है। मैंने बोला ठीक है, इक्वल हाइट का है, ओ बराबर बराबर है, मजेदार है। So here we see that equal pole, equal height on either side of the road. ये सड़क के दोनों तरफ है बराबर बराबर दूरी का, और पता है ये सड़क का जो दूरी है ना वो 80 मीटर का है। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा है जी। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. मतलब इस रोड में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस दोनों ही पोल का, पहला पोल और दूसरे पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। सर पहला किसको माने, दूसरा किसी को भी मान लो यार। अगर तुम पहला इसको मानते हो दूसरा इसको मानते हो, तो पहला वाला 60 डिग्री, क्योंकि वो आदरणीय पूर्वक बोला है 60 और 30, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। यानी अब तुम कर नहीं सकते क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ये पॉइंट पोल से कितना पॉइंट पे होगा ये भी बताना है, और पोल का डिस्टेंस भी बताना होगा। तो चलिए एक बार डायग्राम बना देता हूं और इस क्वेश्चन को कर देते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी 11, 12, 13 और 14, 15, 16 माय गॉड और भी है बचा हुआ, देखेंगे अगले क्लास में। अगर बन जाए तो नया चैप्टर शुरू कर लेंगे, और अगर नहीं बनेगा तो मेरा तो काम है आप सबको क्वेश्चन करना है, और करके जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। Here we see that I have the two poles between the two roads. You write it here. हमने ये देखिए
ये है 2 पोल्स और इक्वल हाइट का डिस्टेंस है, और इसके बीच की दूरी हमने ली है कुछ इस तरह से, और इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट मार्क करते हैं। मान लीजिए कि ये कहीं यहाँ पर है। सर मुझे कैसे पता चलेगा? वो बीच में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जब कैलकुलेट करेंगे भाई। हम मान लेते हैं, अभी हमें भी नहीं पता कि वो बीच में है एग्जैक्टली, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम कहीं भी ये इधर भी पास रख सकते थे। व्हेन यू डोंट नो, यू डोंट नो, व्हेन यू नो, यू नो। ये क्या था? फिल्मी डायलॉग। अब हम यहाँ पर इसको लगाते हैं, और ओ तरीके देखो, ये इधर उधर घुसक रहा है, देखो। एक और लाइन लेते हैं और यहाँ से इसको मैच कर देते हैं। मिलाया, अब वो थोड़ा आगे निकल गया, कोई बात नहीं जी। ओ मैं गिर गया। इधर देखो, ये हमारा पोल 1 है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि 2 पोल है और दोनों की हाइट इक्वल है। अगर ये h हाइट का है तो ये भी h हाइट का है, और कितना मीटर अपार्ट है? 80 मीटर वाइड है। मान लीजिए कि इस वाले पोल से, ये मेरा ए बी पहला पोल है और सी डी दूसरा पोल है, इसके बीच में ये x डिस्टेंस पे है, तो ये 80 माइनस एक्स होगा। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये एक 60 डिग्री है तो दूसरा 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब टॉप होता है, और यहां से हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, इसलिए हमेशा ये नीचे बनता है। आप सबको मालूम है। अब हम ट्रायंगल लेंगे, यहां पर हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल्स? हाइट ऑफ द पोल्स इस केस में आप सबको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जी मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों? ओके, मीठा तब तक ही लगता हूं जब तक तुम दूर रहते हो, पास आके शरारत करते हो ना तो मीठे मीठे बच्चे कहते हो क्या? एनी हाउ, h बाई एक्स इज इक्वल टू 1060 डिग्री। अगर मैं मीठा सिर्फ पढ़ाते समय हूं तो मैं शरारत करते समय क्या मीठा हूं? h बाई एक्स इज इक्वल टू, किसी ने बोला मुझे क्लास में, h बाई एक्स इज इक्वल टू √3 एंड देन, क्योंकि आजकल देखो एक लाइन लगी पड़ी है यूट्यूब पे, सब बोलेंगे कि प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जब शरारत करोगे तब भी मुझे प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल लेना। एनी हाउ, हाँ मैडम वगैरह स्कूल में तो पूरे दिन बोलेंगे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, और जो शरारत करें डंडे लेके मारते हैं। एनी हाउ, सो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ 2 अननोन है h और x, और हमें एक इक्वेशन है। दूसरा लिखते हैं 80 माइनस एक्स एंड दिस इज 1030 डिग्री, दिस इज 1/√3। तो ये होता है, क्योंकि जब मैं शरारत करूं उस टाइम भी मुझे जो प्यार से पेश है ना वो बढ़िया है, बाकी सही करते समय तो प्यारा हुई। सो √3h इज इक्वल टू, यहाँ से h की वैल्यू क्या लिखेंगे? √3x। ओके, तो देखो √3x है h की वैल्यू, यहाँ पर पहला इक्वेशन है और इसमें हम उठा के डाल देते हैं। तो √3 और यहाँ पर √3x लिखेंगे, जो कि 80 माइनस एक्स के बराबर होगा, और √3 और √3 3x होगा, और 80 माइनस एक्स होगा। x को इधर लाएंगे तो 4x होगा। अगले पेज पे लिख देता हूं, तो 4x इज इक्वल टू 80 होता है, और x की वैल्यू 80/4, जो कि 20 मीटर के बराबर है जी। यानी व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द, x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये एक पॉइंट आ गया, मतलब पहले टावर से वो पॉइंट 20 मीटर पे है और दूसरे से 60 मीटर पे है। सो फ्रॉम द पोल 1 इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, एंड फ्रॉम द पोल 2 it is a distance of 60 meter. Now, what is the height of the pole? So, if we take the first equation, h is equal to √3x. So, height of the pole is √3x, which is
root 3 into 20. You can write either 20 root 3 meter, or we can write 20 into 1.732. So in this way, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 34, 0, and then the 3 digit before you can put. Either you can write 34.64 meter, or here you can write this answer. So many times you can write this. Understood? ये सब आप सबको समझ में आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आया। और अगले क्लास में हम मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।